اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ، ان کی کتاب بہشتی زیور سے، اس کا دوسرا حصہ دوسرا سبق ہے، لیکن عقائد ہی کے بارے میں ہے یہ بھی، اس میں آسمانی کتابوں کے بارے میں عقیدہ. تو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چھوٹی بڑی آسمانی کتابیں حضرت جبریل علیہ السلام کی معرفت بہت سے پیغمبروں پر اتاری تاکہ وہ اپنی اپنی امتوں کو دین کی باتیں سنائیں. ان میں 4 بہت مشہور ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان پر کون سی نازل ہوئی؟ تورات. زبور کن پر نازل ہوئی؟ داؤد علیہ السلام. انجیل حضرت عیسیٰ اور قرآن مجید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کے بعد کوئی اور کتاب نہیں آنے والی. قیامت تک قرآن ہی کا حکم چلتا رہے گا. دوسری کتابوں کو گمراہ لوگوں نے بہت کچھ بدل ڈالا، مگر قرآن مجید کی نگہبانی کا اللہ نے وعدہ کیا، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا. اس کے الفاظ بھی اور اس کا مفہوم بھی، اس کی تشریح بھی اللہ تعالیٰ ہی کے ذمہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے اور فرما رہے ہیں. صحابہ کرام کے بارے میں عقیدہ کہتے ہیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جن جن مسلمانوں نے دیکھا ان کو صحابی کہتے ہیں. یعنی اس کی صحیح تعریف یہ ہے، ذرا اور اس میں تفصیل ہے، وہ یہ کہ جس شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور پھر وہ ایمان پہ ہی دنیا سے رخصت ہوا. وہ شخص جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا پھر ایمان لایا آپ پر اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گیا، ایسا شخص صحابی ہے. اور 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ ہیں جو حجۃ الوداع کے موقع پر موجود تھے. کی تعداد ہے ان کی، اس کے لیے کوئی تعداد متعین ہونا یقینی بات نہیں ہے، لیکن یہ یقین ہونا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام عدول ہیں، دین پر تھے، بہت اونچے مقام تھے. کوئی بھی ولی ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، کتنا ہی بڑی ولایت میں پہنچ جائے، کسی عام سے بھی صحابی کے برابر نہیں پہنچ سکتا. خدا کے ابو بکر اور عمر و عثمان علی کے لیول کا. تو صحابہ کرام کی شان اتنی بڑی ہے. اگر ان کے آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا سننے میں آئے تو اس کو بھول چوک سمجھے، ان کی کوئی برائی نہ کرے. ان میں سب سے بڑھ کر 4 صحابہ ہیں، وہی خلفاء راشدین، ابو بکر صدیق. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی جگہ بیٹھے اور دین کا بندوبست کیا، اس لیے یہ اول خلیفہ کہلاتے ہیں تمام امت میں. یہ سب سے بہتر ہے. ان کے بعد عمر فاروق، یہ دوسرا خلیفہ ہے. ان کے بعد عثمان غنی، یہ تیسرا خلیفہ، اور ان کے بعد حضرت علی، یہ چوتھا خلیفہ. خلفاء راشدین ان کو کہا جاتا ہے. 2 بڑے جو ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، اور جو ان کی بیٹیاں عائشہ ابو بکر صدیق تھے، اور حضرت حفصہ حضرت عمر فاروق کے اللہ کے نکاح میں نہیں، اللہ کے رسول کے نکاح میں نہیں. اور جو چھوٹے ہیں اللہ کے رسول کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں، دونوں داماد ہیں، 2 سسر 2 داماد. عثمان غنی کے نکاح میں تو 2 بیٹیاں رہی، ایک کے بعد دیگر ہیں. تو جہاں پہ فرما میری اور بھی بیٹیاں ہوتی ہیں، وہ بھی ان کے نکاح میں دیکھا، تو دونوں کا انتقال ہو گیا. اس میں رقیہ اور ام کلثوم، فاطمہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن، اور آپ کے بھائی بھی علی ان کے نکاح. صحابی کا رتبہ اتنا بڑا ہے کہ بڑے سے بڑا ولی بھی ادنا درجے کے صحابی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. اہل بیت کے بارے میں عقیدہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور بیویاں سب تعظیم کے لائق ہیں، اور اولاد میں سب سے بڑا رتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ہے، اور بیویوں میں حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ کا. ایمان سے متعلق عقیدہ، ایمان تب درست ہوتا ہے جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب باتوں میں سچا سمجھے اور ان سب کو مان لے. اللہ اور رسول کی کسی بات میں شک کرنا یا اس کو جھٹلانا یا اس میں عیب نکالنا یا اس سے مذاق کرنا، ان سب باتوں سے ایمان جاتا رہتا ہے. ایمان کے منافی چند غلط عقائد، قرآن اور حدیث کے کھلے کھلے مطلب کو نہ ماننا اور کھینچ تان کر اپنے مطلب کے مطابق معنی گھڑنا، یہ بددینی ہے، یہ بددینی کی بات ہے. گناہ کو حلال سمجھنے سے ایمان جاتا رہتا ہے. گناہ کوئی کرے آدمی اور سمجھتے ہیں کہ جائز ہے، یہ بس ایسی مولوی نے بنایا ہے، زیادہ اتنا بھی اسٹرکٹ نہیں ہونا چاہیے، آدمی کو اتنا بھی اسٹرکٹ نہیں چاہیے. گنجائش نکالنی چاہیے سگریٹ کی یا داڑھی نہ رکھنے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے نڈر ہو جانا، اللہ تعالیٰ سے نڈر ہو جانا یعنی گناہوں پر جرأت کرنا یا نا امید ہو جانا، یہ دونوں کفر ہے. کہ میرے گناہ اتنے ہو گئے کہ میں کچھ بھی کر لوں مجھے اللہ معافی نہیں کر سکتا. نعوذ باللہ بعض لوگ کہہ رہے تھے اللہ چاہے بھی تو معافی کر سکتا. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں چاہیے. کفر، گناہ چاہے جتنا بڑا ہو جب تک اس کو برا سمجھتا رہے ایمان نہیں جاتا، البتہ کمزور ہو جاتا. اگر وہ گناہ کو گناہ سمجھتا رہے گا تو ایمان کمزور تو ہو جائے گا، جائے گا. اگر گناہ سمجھنا چھوڑ دے گا تو خطرہ ہے کہ ایمان چلا جائے. کسی سے غیب کی باتیں پوچھنا اور اس کا یقین کر لینا. نجومی کے پاس گئے، جا کے ان کو ہاتھ دکھایا یا ذائچہ نکلوایا یا اپنا
ज़ोडिएक साइंस वगैरह जो है वो पढ़िए, आज का ये हफ्ता कैसा रहेगा, पढ़ लेने के बाद उसके पास यकीन करके बैठे हो। आज पीला कपड़ा मत पहनिएगा, ये बड़ा भारी पड़ेगा, तो पीला कपड़ा नहीं पहनेगा, इस यकीन से कि इस पर इस बात पर यकीन करते हुए कि इससे मसला हो जाएगा। इस तरह से बदअकीदगी में पढ़ना ये ईमान को खारिज कर देता है। गैब का हाल सिवाय अल्लाह ताला के कोई नहीं जानता, अलबत्ता नबियों को वही से और वलियों को कशफ और इल्हाम से और आम लोगों को बाद निशानियों से बाद बातें मालूम हो जाती हैं। इसी तरह साइंसदानों को जैसे कुछ अगर एविडेंसेस को सामने रखते हुए अंदाज़ा हो जाता हो कि कल बारिश हो जाएगी, ऐसी कोई बात है, तो वो वही नहीं है और वो उनको यानी खुदाई के दर्जे में नहीं बना देती, उनको इल्मुल गैब हो गया, ऐसा नहीं, बल्कि ये तो एविडेंसेस को सामने रख के असेसमेंट करते हैं और बता देते हैं। ऐसा करने में तो उस पर यकीन कर लेते हैं। ये ज़न के दर्जे में, ये सोचते हुए कि अंदाजे के दर्जे में समझने में कोई मुनाफा नहीं। मुझे कभी कल बारिश हो जाएगी तो आदमी उस पर एहतियात कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं, ये सोचते हुए कि अंदाजा या गलत भी हो सकता है। अच्छा, यकीनी इल्म नहीं है जी। इसमें जो खास करके ये तो मिडिल ईस्ट से ही आया ना, जो स्टार्स को देख करके जायचे बनाना या उनका, हाँ वो सारी चीज़ें बहुत से लोग पहले करते हैं, इस्लाम से पहले भी लोग किया करते थे, तो वो मुख्तलिफ कौमों में ये राइज रहा, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, फाल निकालना चाहिए, बिल्कुल ऐसा उसी चीज़ का में पता करना है कि आपका बेटा होगा या बेटी होगी, क्योंकि ये तो अल्लाह ताला को इल्म है सिर्फ, क्योंकि लेकिन जदीद साइंस में पॉसिबल है कि आप पता कर सकते हैं। उसमें जो बात है वो ये है कि जो कुरान की आयत से लोग इस्तेदलाल करने की कोशिश करते हैं तो उसमें हसर नहीं। जो आयत है इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, अल्लाह के पास ही है साआ का इल्म, यहाँ तो हसर है इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, या तो ये अल्लाह ही के पास है आखिरत का, जो क़यामत है, क़यामत का दिन, उसका, उस घंटे का, उस टाइम का इल्म अल्लाह के पास। ये यकीनी बात है, कभी किसी इंसान को नहीं पता चल सकता। और वो बारिश बरसाता है, बारिश का इल्म ये नहीं कहा अल्लाह ताला ही को है, बल्कि ये कहा कि अल्लाह बारिश बरसाता है, अल्लाह के पास है उसका इल्म। किसी और को भी अगर साइंटिफिक दर्जे में हो जाए आइडिया अपनी कुछ कैलकुलेशंस की वजह से, सही ना, वेदर फोरकास्ट की वजह से, तो उससे कोई अल्लाह ताला की शान में कमी नहीं होती, ना आप उस दर्जे में कोई ऊंचे हो जाते हैं, बल्कि ये कि आपने, अल्लाह ने आपको कुछ इल्म दिया है, सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह ने आपको सख्खर किया था, आपने उससे कुछ चीज़ों को एक्सट्रैक्ट किया, कुछ चीज़ों पे मेहनत की, तो आपको कुछ चीज़ों का अंदाजा हो गया। अंदाजे के दर्जे में है, यकीनी बात तो वहाँ भी वो नहीं कहती, उनका ख्याल है कि ऐसा रहेगा, ऐसा हो सकता है, कभी कभी उसको उल्टा भी होता है, प्रेडिक्शन गलत भी होती है, तो ये भी ईमान के मुनाफिक है। फिर फरमाया वयअलमु मा फिल अरहाम, और वो जानता है कि रहमों में क्या है, वूम्स में क्या है, मदर वूम्स के अंदर क्या होता है, वो अल्लाह जानता है, यकीनन अल्लाह जानता है, लेकिन उसमें ये नहीं लिखा कि अल्लाह ही जानता है, कोई और नहीं जान सकता, ये नहीं कहा। लेकिन हमारे उसमें तर्जुमा में पुराने कुछ इस तरह की बात आ गई, तफसीर में पुरानी इस तरह की बात आ गई कि गालिबन अल्लाह ही इसमें हसर मौजूद है, और ये बात जो खाली अल्लाह ही के लिए रिस्ट्रिक्टेड है ऐसा नहीं, बल्कि अब मौजूदा जो फ़क़हा है तो अरबी को पढ़ने के कायदे से उसमें गुंजाइश है बिल्कुल इस बात को ऐसे समझने की कि वहाँ ये नहीं कहा कि अल्लाह कोई और नहीं जान सकता, कोई और नहीं जान सकता। क़यामत के बारे में तो कहा कि इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, ये तो वही जानता है, सही है, लेकिन ये कि माँ के पेट में क्या है इसका इल्म किसी और को, अगर वो भी किसी थोड़े दर्जे में, जन के दर्जे में, गालिब गुमान के दर्जे में, यकीनी वो भी नहीं होता। बाज़ औक़ात बताते हैं लड़का हो जाती लड़की, ऐसा होता है, कम होता है, बहुत कम होता है, लेकिन हो जाता है। तो बाज़ औक़ात वो बता ही नहीं पाते कि वो तो जाहिर बात है बच्चे को स्कैन में जब देखते हैं स्कैनर के अंदर तो उसके जेनिटल्स देख के बताते हैं, उसके शर्मगाह के इलाका देख के बताते हैं। और वो बाज़ औक़ात बच्चा पाँव रख के ऐसे बैठा हो, पेट के अंदर पड़ा हुआ होता है, क्या बताइए सकते, तो कहते हैं वो देख नहीं सकते, स्कैनर तो उसके थ्रू नहीं जाता, तो हम वो नहीं चुके देख सकते। ये अगर आप चाहें तो फ्यूचर में ये भी होगा बिल्कुल कि आप वो सीटी स्कैन टाइप का कोई MR स्कैन होगा। सिटी में तो ये रेडिएशन बहुत होंगी तो डॉक्टर्स कभी भी अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन ये हो सकता है कि MR स्कैन जिसमें रेडिएशन का भी खतरा नहीं है, उसके जरिए, या कोई और स्कैन ऐसा कि जिसके नतीजे में आप उसको देख लें और आपको पता चल जाए, लेज़र टाइप का कोई स्कैन, जैसे कोई ख़राब असरात भी ना हो और आप देख सकते हो, तो आपको वो कवर भी कर रहा हो पाँव से तब भी थ्रू एंड थ्रू आप देख सकते हो, पिक्चर पूरी आ जाए। पॉसिबल अभी भी पॉसिबल है कि नीचे से डाल के स्कैन यानी स्कैनर छोटा सा उससे देख ले, तो अल्लाह ताला यानी ये इल्म अल्लाह ने इंसान को दिया है, लेकिन क्योंकि इस आयत में ये है नहीं लिखा हुआ कि अल्लाह ही खाली जानते, कोई और जान नहीं सकता, तो उसको लाजमी ये मायने पहनाना ज़रूरी नहीं है कि हम कहना शुरू कर दें कि इसमें तो लिखा है नहीं जानता, कोई और नहीं जानता, ऐसा नहीं लिखा।
لیکن اللہ کے پاس اب یہ بچہ یہ تو ایک بات ہوئی ویسے بھی نا ایک اس میں اضافی بات یہ ہے کہ یہ تو اتنی ایک بات ہوئی کہ آپ یہ جان سکتے ہیں کہ بھائی لڑکا کی لڑکی کا کہ وہ پیدا ہو بھی جائے گا کھائے گا پیے گا کیا اس کا نصیب ہوگا کب تک زندہ رہے گا یہ کچھ بھی نہیں سمجھ نہیں آتا اچھا ہوگا برا ہوگا بالکل تو یہ سارا اس کا علم جو ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں لیکن یہ کچھ اگر کا دکھا تھوڑی بہت پتہ چل جائے بات تو کوئی اس آیت کے منافی نہیں ہے. تو جو 3-4 مہینے میں جو اسکین کہتے ہیں وہ کیا آپشنل ہے آپ جاننا چاہتے ہیں یا نہیں تو پوچھنا چاہیے کہ نہیں ضرورت نہیں اگر پتہ بھی کر لے کوئی تو کوئی بری بات کوئی حرج نہیں اگر پتہ اس چل جائے وجہ سے کہ آپ کپڑے بہت سے آئے ہیں لڑکے انڈیا میں تو الگ وجہ سے پوچھتے ہیں نا انڈیا میں تو دوسرے معاملے اب یہ کس وجہ سے آپ پوچھ رہے ہو کہ آپ قتل کر دیتے ہیں اگر آپ آخر تو ویسے ہی تیاری کرنے کے لیے تاکہ کپڑے وغیرہ اس طرح کے لا سکیں اس میں حرج نہیں لیکن اس کو اب یہ کہ یہ صبح شام کا بھی یہ ایشو یہی بن جائے کہ کہیں پتہ چل جائے نہیں بھی پتہ چلے اس کو آگ بند کے کیسے یقین بھی نہیں کر لینا چاہیے ہو سکتا غلط بھی ہو تو بہرحال اللہ جو کرے لیکن اس کو کوئی مذاکرہ نہیں چلے. اچھا ایمان کے منافی چند غلط عقائد پڑھ رہے تھے نا غیب کا حال سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا یہ بتایا کافر کہنا یا لعنت کرنا کسی کا نام لے کر کافر کہنا یا لعنت کرنا بڑا گناہ ہے چاہے وہ کافر ہو. ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ظالموں پر لعنت جھوٹوں پر لعنت جن کا نام لے کر اللہ اور اس کے رسول نے لعنت فرمائی وہ کر سکتے ہیں یا ان کے کافر ہونے کی خبر دی مثال کے طور پہ فرعون کا حامان کا یا اسی طریقے سے ابو جہل کا یا ابو لہب کا ان لوگوں کا وہ ٹھیک ہے یہ تو گناہ نہیں لیکن آج کل کسی انسان کو یا جس کے بارے میں آپ کو نہیں پتا کہ وہ مرتے وقت ایمان پر مرا یا کفر پر مرا آپ نہیں جانتے ہو سکتا ایمان پر مرا اس کو کافر کہنا یا کوئی انسان ہے جس نے کافرانہ کوئی بات کہہ دی اب آپ کو نہیں پتا کہ اس نے کفر کیا کہ نہیں آپ کو وہ بات لگی کافرانہ کیونکہ ایک چیز ہے کوئی جملہ کافرانہ ہو اور ایک چیز ہے کسی پر اس حکم کو منطبق کیا جائے کہ ہاں بھی یہ کافر ہو گیا یہ کہا جائے مثال کے طور پہ قرآن میں یہ چوری کی جو سزا ہے ہاتھ کاٹنا یہ ظلم ہے نعوذ باللہ اگر کوئی آدمی ایسا کہے تو یہ جملہ کافرانہ ہے لیکن جس شخص نے یہ کہا اس کو آپ جاتے چھوٹتے کافر نہیں کہیں گے آپ اس کو پکڑیں گے اس کو بٹھائیں گے اس کو سمجھائیں گے کہ بھائی جو تم کہہ رہے ہو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کیا تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ظالم اللہ نے غلط فیصلہ فرمایا تو کہتے نہیں میرا مطلب اگر وہ اس میں ایکسپلینیشن دے رہا ہے سمجھنے اس کی سمجھ میں نہیں آیا آپ نے سمجھا دیا اس کو تو کہتا ہے ہاں اب میں مان لیا میں سمجھتا تھا کہ شاید لوگوں نے کہا ہوا ہے اس کا مطلب نہیں ہو سکتا یا میں نے اس لیے کہا تھا کہ مجھ پر بندوق رکھی ہوئی تھی کسی نے کہا تھا کہ نہیں ایسے نہیں کہو گے تو یہ ہو جائے گا انڈر پریشر کہا میں نہیں اور بت پرست جو ہے وہ لوگ اسی طریقے سے اس میں ایک جو ترتیب ہے جو احتیاطاً کرنی چاہیے مجھے کہ ایک شخص ہے غیر مسلم اور ایک شخص ہے کافر کافر اس کو کہتے ہیں جو ریجیکٹ کرے ریجیکٹر کو کہتے ہیں کافر تو ریجیکٹر وہ ہوتا ہے جس کو آپ نے صحیح طریقے سے دین کی دعوت دی اور اس نے ریجیکٹ کر دی اس کو تو آپ کافر کہہ سکتے ہیں کہ اس نے قبول ہی نہیں کی لیکن ایک شخص کے بعد آپ کبھی دعوت دینے گئے ہی نہیں آپ نے اس کو کچھ بتایا ہی نہیں ایسے شخص کو کافر کہا جائے یہ احتیاطاً غلط چیز ہے اس سے بچنا چاہیے غیر مسلم ہے وہ اس کا عمل بھی کافر آنا ہے لیکن اس کو خود متعین کر کے کافر اس لیے رکھا جائے کہ اس تک آپ نے بات ایک پیش ہی نہیں کی تو کس بات سے ریجیکٹ کیا کس بات سے ریفیوز کیا کیا انکار کیا اس نے تو وہ جو وہ بس بات بیٹھتی نہیں اور مسلمان کو تو کسی بھی صورت میں کہنے سے بچنا چاہیے اس کی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول کے حدیث آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو کافر کہے دو میں سے ایک کافر ہو یا تو وہ جس کو کہا گیا وہ کافر ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو یہ کلمہ اوپر جاتا ہے پھر واپس آ کے اس شخص میں دیکھتا ہے تو اس میں کفر پاتا ہے تو ٹھیک ہے وہ کافر ہے تمہارا جملہ صحیح پہنچ گیا اگر اس میں نہیں پاتا تو اس پر آتا جس نے کہا ہے وہ کافر نہیں تو کافر جس نے کہا ہے وہ کافر ہوگا اللہ کے نزدیک تو جیسے یہ کفر کا فتویٰ لگانا یا کہنا بالکل بچنا چاہیے جیسے سلمان رشدی اس طرح کے جو لوگ ہیں ایسے کسی لوگوں کے بارے میں علماء نے کرام نے جن کے بارے میں کہہ دیا فتویٰ باقاعدہ دیجیے وہ تو جانتے ہیں کس سے کیا بات کر رہے ہیں کس کتاب کی بیس پر کیا تفصیلات ہیں وہ جانتے ہیں ایسا ٹھیک ہے ان کے بارے میں ٹھیک ہے اس کو ہم لوگ بھی پریشان جو قادیانی ہوئے یا سلمان رشدی ہوا یا اس طرح کے جو لوگ ہیں جنہوں نے ارتداد کیا جو دین سے نکل گئے باہر باقاعدہ لکھا انہوں نے باتوں کو سمجھانے کی کوشش کی ایکسپلین کیا ان کا دوسرا ہے معاملہ میں انڈیویجولس کی بات کروں انڈیویجولی جو آپ کے لنکس ہوتے ہیں ان سے آدمی کو بہت احتیاط کرنا چاہیے حکم عام تو یہ ہے کہ ایسا کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے لیکن حکم خاص حکم متعین جو ہے اس کے لیے علماء کرام
में से भी बड़े जो है वो चीदा किस्म के लोग होते हैं कि जो बाकायदा उस पर उसको असेस करते हैं और फिर बाकायदा उसका जिसे कहना चाहिए सही तरीके से एक्सप्लेन करके समझा के बता के फिर उसकी राय सुन के फिर उसको पता लगाते हैं, टाइम देते हैं बाकायदा समझाने के लिए। ये नहीं कि जो चाह बस फलाने बाकी तो वो काफी ऐसा नहीं। लेकिन भाई हम लास्ट टाइम गए थे वो इमाम नबी की जो दूसरी हदीस हम पढ़ते उसमें शेख ने एक हदीस कोट की जिसमें उन्होंने बताया एक शख्स होगा जो कुरान पाक को पढ़ के समझ के जिसका मफहूम ये था अपने हमसाये को काफिर करेगा उसको हलाक करेगा। वो याद है जो हमने वो हमें कुछ समझ नहीं आई सही तरह से मैं पूछूंगा उनसे तो वाकया बयान किया है। उन्होंने एक हदीस ही बयान की थी कि ऐसा एक शख्स होगा जो मतलब कुरान दीन का इल्म आ जाएगा, उसको कुरान पढ़ेगा, उससे दीन का इल्म आ जाएगा उसे, और फिर उसके बेसिस पे वो जो है अपने पड़ोसी को मतलब वो उसे कहेगा कि एक काफिर है और उसको हलाक कर देगा। तो वो मतलब उसको खवारिज जो है उन्होंने इस तरह से किया बहुत कि उन्होंने अपने हिसाब से दीन को समझने की कोशिश की और अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक नहीं अमल किया, बल्कि अंबिया और सहाबा का जो तरीका था उन्होंने जैसे समझाया वो नहीं समझे, बल्कि अपने हिसाब से चीज़ों को लिटरली समझने की कोशिश की और लोगों पर इल्ज़ाम लगाया। तो उन्होंने बहुत से बुजुर्गों को, उलमाए कराम को, ताबईन को, बड़े बड़े शयूख को कत्ल करने की कोशिश की और कत्ल किया भी बहुत सौ को। तो वही कहते हैं कि कोई भी कबीरा गुनाह का मुर्तकिब होगा तो वो काफिर, कबीरा गुनाह करने वाले को वो काफिर कहते हैं, जो गलत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हुम किलाबुन्नार, वो जहन्नम के कुत्ते हैं। तो अगर खलक से नीचे उनके दीन नहीं उतरेगा, कुरान पढ़ेंगे ऊपर से तुम्हें अपनी नमाजें उनके सामने हकीर लगेंगी, तो तीन कमान से निकल जाता है इस तरह ईमान उनके दिलों से निकल जाएगा। वजह उसकी है कि दीन यही होगा ज़ाहिरी, लेकिन बड़े सच्चे। ये सिर्फ हदीस खवारिज के मुतालिक थी ये अहादीस क्योंकि कुछ आई डोंट नो वही वो शेख साहब ने तला से डिस्कस किया था, मुझे तला ने आपसे पूछा नहीं पूछा, उन्होंने शुरू में एक बात की थी जो बड़ी अजीब सी लगी कि उन्होंने फितना कहा था वहाबिया, तो उसको बाद में डिस्कस करते हैं इस रिकॉर्डिंग के बाद। ठीक है तो वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा क्या उसमें इशू। ऐसा नहीं है, जो लोग कहते हैं वहाबियत कह लीजिए उसको, क्योंकि आपने कह दिया तो मैं उसको समझा करूँगा ताकि ये न समझा जाए कि वो मैं अवॉइड कर रहा हूँ उसको। वहाबियत बहुत गलत बात है इस तरह से, बल्कि इस तरह इस्तेमाल भी नहीं करनी चाहिए। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब एक बुजुर्ग गुजरे हम्बली फ़िक़्ह के और सऊदी अरब में होते थे, उनकी अपनी फ़िक़्ह थी, उनका अपने हम्बली फ़िक़्ह के फॉलोअर थे। हाँ, तशद्दुद था उनकी बहुत सारी आरा के अंदर। उनके फॉलोअर्स को वहाबी कहते थे कि जो एक ताने का नाम है, और तान करना मुसलमान के लिए अच्छा नहीं, ज़ेवर नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम नहीं है कि किसी के बुरे नाम रखे जाए या तान किया जाए। और आप चूँकि बुरे मानों में माने तो उसके बुरे नहीं है, अल्लाह का नाम है वहाब, है ना, उस निस्बत से तो कोई बुरी बात नहीं, अल-वहाब अल्लाह ताला का नाम। लेकिन यह है कि चूँकि आप उसको बुराई के सेंस में यूज़ कर रहे हो तो ये ठीक नहीं है कि बि'सा इस्मुल फुसूक को बाद ईमान, के बुराई ईमान के बाद जो बुरे बुरे नाम रखना है कोई माकूल बात नहीं, अच्छी बात नहीं है। और वो अहले सुन्नत वल जमाअह का हिस्सा है, ठीक, उनके अंदर खराबियाँ हैं और हर इंसान में होती है, हर किस्म के ग्रोहों में होती है। तो तशद्दुद के साथ उनको बिल्कुल दायरा इस्लाम से खारिज समझना या फितना समझना, ये खुद तशद्दुद है। जिस तशद्दुद की वजह से आप उनको रिजेक्ट कर रहे हैं वही तशद्दुद आप प्रमोट कर रहे हैं, जब ये कहते हुए कि वहाबियत गलत है। जैसे वो वहाबी हज़रात जो अपने आप को वहाबी कहते हैं, सर वो भी इसी तरह का एटीट्यूड रखते हैं तशद्दुद में। वो जो तकलीद करता है वो गुमराह है, जो है वो हनफी शाफी वाली सारे गुमराह हैं जिनकी तकलीद करते हैं, जो सूफ़ी हैं वो भी गुमराह हैं, तो जो तबलीगी हैं वो भी गुमराह हैं, जो जमात इस्लामी वाले वो भी गुमराह, तो सारे गुमराह हैं। तो वो भी ये काम करते हैं, तो आप भी वही काम न करें जो गलत काम वो कर रहे हैं। एक कंटेक्स्ट था बस वो मुझे तो मैं उनकी बात में शेख साहब की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। हमारा आपका एटीट्यूड लोगों के बारे में यही होना चाहिए कि अहले सुन्नत वल जमाअह की तारीफ जहन में रखिए और उस पर जो पूरा उतरता है उसको उसके बारे में कुछ भी कहने से पहले एहतियात करें। उलमा की लड़ाई जो कुछ है वो उनके साथ छोड़े, वो उनका काम है। ये अम्मा अब्बा की लड़ाई में बच्चों को पढ़ने की जरूरत है। 4 साल 5 साल का बच्चा जाके कह के अम्मा आप सही कह रहे हो और अब्बा गलत कह रहे हैं, तो अम्मा अब्बा दोनों मिलकर उसको 2-4 लाते लगाएंगे, ठीक है तुम कहाँ से आ गए बीच में, तेरे का काम। ये अम्मा अब्बा की बड़ों की बात है, उनको उन तक रहने दें। उसमें कभी ये होता है कि लोग कहते हैं, कभी गुस्से की बात भी कहते हैं, वो उन बातों को जानते हैं कि कहाँ किस बात को कैसे कहना है, उनकी हिम्मत है। आप और मैं शायद नहीं समझ सकते, तो मैं शेख की या किसी और की बात नहीं कर रहा। हमारे आपके समझने के लिए कि जो लोग इन 3 इनफैलिबल्स पे यकीन रखते हैं वो अहले सुन्नत वल जमाअह का हिस्सा है।
कुरान पर, उसको बिल्कुल अल्लाह की फाइनल किताब समझते हैं और उसमें ये नहीं समझते कि कुछ कम ज़्यादा हो गया जितना हो तो नहीं है। इसी तरीके से वो लोग जो हदीस मुतवातिरा सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा और जमा यानी सहाबा कराम के इजमा को, उनकी जमात को, उनके अमल को, जो इन तीन चीज़ों को अपनी रहनुमाई समझते हैं, इनसे दीन को अख्ज़ करते हैं, लेते हैं, इंशाअल्लाह ताला वो अहले सुन्नत वल जमा। जमा का मतलब इस जमात सहाबा हुई बिलउमूम यानी बिलखुसूस, सॉरी, और बिलउमूम उसमें सारे लोग बात के भी शामिल हैं, बाकी अइम्मा भी, बाकी मुज्तहिद इमाम जितने हैं, जहाँ जहाँ वो जमा हो जाए किसी चीज़ पर इजमा कर ले, वो सब बातें हमारे लिए दलील क़तई बन जाती है, इजमा उम्मत। लेकिन इजमा सहाबा तो बहरहाल बेतहाशा अहमियत का हामिल है। तो जो लोग इसको मानते हो, कुरान और सुन्नत को इसी तरीके से मानते हो, वो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमा का हिस्सा है। उसमें वो सारे ग्रोह शामिल हैं, उसमें वो बरेलवी हजरात हो, देवबंदी हजरात हो, सलफ़ी हजरात, अहले हदीस जिन्हें कहते हैं, वहाबी जिन्हें कहते हैं, वो सारे लोग हों, या जो है वो हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली ये हों, या सूफिया के किसी सिलसिले से हों, जमात इस्लामी वाले हों, तबलीगी जमात वाले हों, हिज़्ब तहरीर वाले हों, ये सारे के सारे लोग इंशाअल्लाह ताला अहले सुन्नत वल जमा का हिस्सा है। हम ऐसे, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है और मैं अपने साथी से मैंने ऐसे ही पढ़ा और मैं ऐसे ही समझता हूँ। आपको भी ये चाहता हूँ कि आप ऐसे ही समझें, इल्ला कि आपका इल्म कभी आपको ये समझाए कि इसके लायक बने तो वो आप जाने, आपका काम जाने। लेकिन हम ये समझते हैं कि यही उम्मत के अंदर रास्ता है आगे बढ़ने का। जो लोग तशद्दुद की बात करते हैं इधर उधर, कभी इस तरफ चले जाते हैं, कभी उस तरफ, अपने अलावा दूसरों को गलत समझते हैं, मेरा गुमान ये है कि वो सारे लोग जो है वो बहुत बारीक एक रास्ते पर चल रहे हैं जहाँ पे ख़तरा है कि वो कभी कभी शैतान का भी शिकार हो जाए। उसकी वजह ये कि आपके पास वही आती है क्या, जो इज्तिहाद आपने किया जिस चीज़ पर, जो चीज़ कतइयत से साबित नहीं है, उस ऐसी चीज़ को जन्नी चीज़ की बेस पर दूसरे इंसान पर आप जो सही समझते हैं उस पर अमल कीजिए, लेकिन दूसरे पर आप कैसे कदम लगा सकते हैं, कैसे उसके बारे में कोई फैसला कर सकते हैं कि जो आपने इज्तिहादन किसी चीज़ को समझा है, दूसरे अगर वैसे नहीं समझते, दूसरे तरीके से समझते तो आपने कहा गलत। यानी मीराद अगर आप अच्छा समझते हो, दूसरा नहीं समझते, तो इस बेस पे कोई आदमी कुफ्र पे, इस्लाम पे, अहले सुन्नत और अहले बातिल, अहले सुन्नत वल जमाअत से बाहर निकल जाना, खुरूज, ये कैसे हो सकता है? इज्तिहाद रिसर्च को कहते हैं ना। इज्तिहाद का मतलब है कि हाँ, बहुत गहरी रिसर्च, एनालिसिस, डीप एक्सरसाइज करना, रिफ्लेक्शन, बिल्कुल नहीं, वो है इज्मा है, इज्मा। तो इज्तिहाद का मतलब ये है एक्सर्ट करना, सही माने में स्टडी, जुहद करना, मेहनत करके, लेकिन वो वही कि जो आलिम दीन है, जो जिसके अंदर एक कैपेसिटी है, जो उसका इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग रखता है। हर आदमी नहीं, आम आदमी नहीं करेगा, जिनका काम है, जो एक्सपर्ट्स हैं वो करेंगे। तो जब वो ये करते हैं तो उनके लिए दोहरा जाए, अगर वो सही जवाब पाले, अगर वो गलत भी आंसर उनका निकले तब भी उनके लिए जब अजर एक मौजूद है, रसूल ने फरमाया गलती उनसे हो जाए तब भी सवाब है। मुज्तहिद के लिए गलती होने पर भी कोई पकड़ नहीं, और गैर मुज्तहिद के लिए सही होने पर भी पकड़। इसने कोशिश की, जाहिल था, आम आदमी था, डॉक्टर बन के इलाज कर रहा लोगों का, सही भी कर लेगा, इत्तफाक से उसने सही दवा दे दी, तब भी कोर्ट में पकड़ा जाए। इसने कैसे हिम्मत कैसे की, इस पर रोल ही नहीं था। इज्तिहाद को एक कॉमन सेंस में भी यूज कर सकते हैं ना। वैसे कॉमन सेंस में करना अलग बात है, लेकिन फिक़ही इस्तिलाह में जो दीनी इस्तिलाह के अंदर जो इज्तिहाद होता है उसका वो सिर्फ मुज्तहिद ही उसके अहल होता है, वो उनको करना चाहिए। हम लोग जो गैर लोग होते हैं, गैर मुज्तहिद, उनको आप कहते हैं मुक़ल्लिद, जो इज्तिहाद करने वाले पर ट्रस्ट करते हुए उसके तरीके को फॉलो करते हैं। उनके लिए तक़लीद करना उन पर लाजिम, और उनके लिए फ़ुरूइयात में तक़लीद करना लाजिम, और मुज्तहिद के लिए तक़लीद करना हराम। उनको तो हर हालत में इज्तिहाद ही करना है, इज्तिहाद करके बताइए। इनके इज्तिहाद में डिफरेंस हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, 50 स्कॉलर हैं, सबके अपने मुज्तहिद लेवल के स्कॉलर्स हैं, इनके आपस में इख्तिलाफ हो। इमाम मालिक, इमाम शाफी, हम्बली, इनके इख्तिलाफ है इसीलिए कि इनके अपने अपने अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों के, अपने रूल, अपने प्रिंसिपल्स बनाए, उसमें अगर जो है वो आपस में टकराव होगा तो कोई मजाक नहीं। सही है, तो ये आप अपने अमल पे, अपनी राय पे अमल करेंगे, वो अपनी राय पे अमल करेंगे, इख्तिलाफ बेस पर कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कहेंगे तू इस बात पे काफिर हो गया, इस्लाम से निकल गया, या तू ये गलत नहीं है, सही ये नहीं करना। आइमा नहीं करते थे और किया भी नहीं उन्होंने, कभी नहीं किया। इमाम शाफी जो है उनके नजदीक जो है सुन्नत मुअक्कदा है फजर की नमाज में दूसरी रकअत के अंदर रुकू से हाथ उठाकर कुनूत नाज़िला करना, और ये जो है वो कूफा में तशरीफ लाए था। तो सारे आसपास के कूफा के, बगदाद के जो अहले इल्म थे, अइम्मा थे, बड़े बड़े इमाम, बड़े बड़े बुजुर्ग उलमा कराम, ये सारे पहुंच गए मस्जिद में। तो आज़मिया जगह का नाम है, जो इमाम आज़म अबू हनीफा की जहाँ कब्र है कूफे में, उनके मज़ार के साथ जो आगे एक मस्जिद है, उस मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ाने के लिए पहुंच गए वो। तो लोग बहुत से और फजर में अब नमाज उनके पीछे पढ़ रहे, तो उन्होंने नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद जो है वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दूसरी रकअत में कुनूत होगा, कुनूत नहीं हुआ।
नमाज खत्म हुई तो लोगों ने पूछा हज़रत आपका तो आपकी राय है कि भाई करना चाहिए और बहुत अफजल काम है, सुन्नत काम है, और हर फजर में आप ऐसा करते हैं, तो आज आपने किया नहीं। तो कहने लगे ये जो इस साहिब कब्र है इनकी इज्जत या इनके एहतराम में मैंने ये बात नहीं की। आज मैंने कुनूत इसलिए नहीं किया कि जो साहिब कब्र है यानी इमाम हनीफा की कब्र की तरफ इशारा किया कि ये जो साहिब कब्र है चूंकि इनकी राय ये है कि ऐसा नहीं करना चाहिए थ्रू आउट द ईयर, तो इनका पास करते हुए मैंने अपने आज, हालांकि खुद भी मुजतहिद इमाम है न कर, लेकिन उनकी इज्जत एहतराम अदब के लिए आज मैंने नहीं किया। किसके बारे में है? इमाम शाफी। बाकी लोगों ने क्या कहा, जो लोग आए हुए थे वो सारे हनफी थे जो कि कूफा के थे, उन्हीं के इमाम हनीफा के शागिर्दों में से शागिर्द थे। तो कहेंगे हजरत हम तो यहाँ ये सोच कर आए थे कि आज आपके पीछे पड़ेंगे तो हमें ये कुनूत करने का मौका मिल जाएगा, आपके पीछे पड़ने का मौका मिल जाएगा। इतनी वुसअत, ये वुसअत थी लोगों को। कुनूत माने क्या कहते हैं, नमाज दूसरी रकम में हाथ उठाते हैं उसको कुनूत कहते हैं ना, कुनूत नाज़िला हाथ उठा के दुआ कुनूत जो पड़ी है जिसका वितर में भी जो उनका तरीका, उनके यहाँ वही तरीका है जी। इसी तरीके से इमाम मालिक से कहा हारून रशीद ने कि भाई आप जो है वो अपनी किताब को लिखिए और मुझे दे दीजिए, मैं सबकी किताबें कहूँगा खत्म कर दो, खाली एक ही फिक्र चलेगी। उनका नहीं, ये मेरा इज्तिहाद है, बाकी को मैं कैसे कह दूँ, उनका इज्तिहाद गलत है, उन्होंने जो इज्तिहाद किया अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अल्लाह के काबिल कबूल, वो भी मुज्तहिद थे। ये कि हाँ ये मेरी राय है, इस पर मैं अमल करता हूँ। तो उसमें ऐसे ही कहा जाता है, इमाम अइम्मा ये कहते हैं कि हम अपनी राय का सही होने, अपनी राय के सही होने पर यकीन किसी दर्जे में रखते हैं, गालिब गुमान रखते हैं, लेकिन इहतिमाल रखते हैं खता का कि इसमें गलती का इम्कान है, और दूसरे की राय को गलत समझते हैं लेकिन इहतिमाल सही होने का रखते हैं, हो सकता है सही हो, अल्लाह जानता है, करते उस पर अमल है जो हम सही समझते हैं, ये हमारी राय है जारी बात है, लेकिन 100% सही हो हम नहीं जानते, तो वही थोड़ी हो सकती किसी पर। और क़यामत में अल्लाह ताला फैसला फरमा देंगे कि किसी को करवाना ही हो लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, इसलिए कि इज्तिहादी मसलों में 2 राय होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 क्या 4 राय होने से फर्क नहीं पड़ता, जितनी भी राय हो, एज लॉन्ग एज कि जो बंदा कर रहा है वो क्वालिफाइड इमाम है। ये नहीं कि हर लड़की जुट के अपने हिसाब से फतवे लगाता रहे और चलाता रहे, बात क्या है कि जनाब ये ऐसे और वैसे ना, हम आपने ठीक है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इनके सिर्फ 13 सहाबा आए थे जिनको फतवा देने फतवा निकालने की इजाजत नहीं थी, फतवा सहाबा बरज़ख के हालात के बारे में अकीदत फरमाते हैं कि जब आदमी मर जाता है, अगर गाड़ा जाए यानी दफन कर दिया जाए, तो गाड़ने यानी दफन करने के बाद, और अगर न गाड़ा जाए तो जिस हाल में उसके पास 2 फरिश्ते जिनमें से एक को मुनकिर एक को नकीर कहते हैं, आकर पूछते हैं कि तेरा परवरदिगार कौन है, तो सवाल उससे 3 करते हैं, तेरा दीन क्या है, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछते हैं कि ये कौन है। अगर मुर्दा ईमानदार हो तो ठीक ठीक जवाब देता है, फिर उसके लिए हर तरह की चैन है, जन्नत की तरफ खिड़की खोल देते हैं जिससे ठंडी ठंडी हवा और खुशबू आती रहती है, और वो मज़े में पढ़कर सोया रहता है। और अगर मुर्दा ईमानदार न हो तो वो सब बातों में यही कहता है कि मुझे कुछ खबर नहीं, ला अदरी ला अदरी। फिर उस पर बड़ी सख्ती और अजाब क़यामत तक होता रहता है, और बाज़ को अल्लाह ताला इस इम्तिहान से माफ़ कर देता है, मगर ये सब बातें मुर्दा को मालूम होती हैं, हम लोग नहीं देखते। जैसे सोया हुआ आदमी ख्वाब में सब कुछ देखता है और जागता आदमी उसके पास बेखबर बैठा रहता है। मरने के बाद हर दिन सुबह और शाम के वक्त मुर्दे का जो ठिकाना है दिखलाया जाता है, जन्नती को जन्नत दिखलाकर खुशखबरी देते हैं और दोज़खी को दोज़ख दिखलाकर और हसरत बढ़ाते हैं, परेशानी उसकी बढ़ती चली जाती है। अच्छा असली में ये जो कब्र के बारे में जो ये जो बातें हैं जितनी भी हम ये सब मतलब हदीसों से वो हैं, अच्छा सही कुरान से नहीं है ना? नहीं, सही अहादीस से साबित है, कुरान में बस इनका ज़िमनी तज़किरा है, अहादीस से मुतवातिरा है इसके बारे में, और इजमाए उम्मत इसके बारे में, अच्छा उसकी बुनियाद पर ये सारी चीजें। नमाज का भी पूछा जाएगा कब्र में, तो आने के सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क़यामत वाले दिन होगा। कब्र के अंदर ये 3 सवाल होगा, मन रब्बुका मन दीनुका, और उस शख्स के बारे में तुम क्या कहते हो अल्लज़ी बुइसा फ़ीकुम, के माज़ा तक़ूल, उस शख्स के बारे में तुम क्या कहते हो जो तुम्हारे दरमियान मबूस हुआ था, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बारे में तुम्हारी क्या राय है, और ये वो शख्स जो तुम्हारे दरमियान मबूस हुआ था उसके बारे में तुम्हारी क्या राय है, तुम क्या समझते थे। मुसलमान कहता हमारे नबी थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो हर शख्स से हो सकता है पिछली उम्मतों से उनके नबी के बारे में पूछा जाए। सही वैसे इंडिकेटिव है ना सलीम भाई, क्योंकि जो फिजिकल फॉर्म में तो जो बस बात की राय ये है कि तस्वीर दिखाई जाएगी, बाकायदा शबी आ जाएगी, तो कौन सा मुश्किल है। नहीं मतलब आदमी जो क़यामत तक जो कब्र में मुर्दा जो रहेगा, ये तो मतलब तो आदमी तो ये हो जाता है ना
बिल्कुल मिट्टी हो जाता है। वो तो बॉडी उसकी बॉडी वो तो है, मतलब वही फिजिकल फॉर्म नहीं होता। हाँ रूह तो है उसकी, उसकी जो सोल है, रूह जो है उसकी, वो जैसे मैं कह रहा था हाँ। डिफरेंट डिमेंशन में चली गई ना, तो वहाँ पे वो लेकिन मौजूद है हाँ, वहाँ पे उसको। लेकिन टाइम सिर्फ हो गया उसकी। कमर में डिसाइड तो हुआ नहीं कि इसका फैसला तो हुआ नहीं कि कब जन्नत में जाएगा कि दोज़ख में। उसका फैसला फाइनल तो नहीं हुआ, लेकिन उसका बस समझ लीजिए कि प्रिलिमिनरी रिजल्ट आ गया। जो बॉडी लाइन पे होंगे उनका क्या होगा? बस उनका फैसला अल्लाह फरमा देंगे, क़यामत में हो जाएगा उनका फैसला। लेकिन इसमें हो गई है कुछ पीछे से नेकियां आती जाए, घर वाले उसके लिए नेक अमाल बताते सदका जाए, जारिया। सदका जारिया जो वो करके गया वो सब जमा होता जाएगा, तो कहेंगे भाई फाइनल वोट तुम्हारा ये है, ठीक है आपने अच्छा काम। अच्छा उसका हिसाब चल रहा है, उसका मतलब अमल चल रहा है दुनिया में। उसके अमल जो वो पीछे छोड़ के गए, 3 चीजें चलेंगी ना, वो चलती रहेंगी, बाकी सदका जारिया ईसा जो आदमी जल्दी हुआ गया वो तो ज्यादा फायदा। अगर पीछे अच्छे काम छोड़ गए, बुरे छोड़ गए, तो वो ज्यादा खतरनाक मरने के बाद कोई हम अटके हुए हैं, ज़हनी तौर से हम लोग अटके हुए हैं टाइम में, मरने के बाद जो है वक्त जो है खत्म हो गया ना, पता नहीं चलेगा ना आपको कहाँ है आप क्या, वक्त थोड़ी जल्दी होती है इसका, मतलब जिसको पता लेकिन चलना सवाब पहुंचता रहेगा चीजों में। हाँ। क्योंकि वो जो आर्टिकल मैंने पढ़ा वो 45 पेजेस का अबू आलिया का, उसमें एक चीज लिखी है, इब्न तैमिया से किसी ने पूछा कि 70,000 दफा कलमा पढ़ के किसी को बख्शे उसका सवाब पहुंचेगा, इसमें कोई हदीस है ही नहीं। तो उनका इब्न तैमिया का जवाब उन्होंने लिखा था कि उसको सवाब पहुंचेगा, लेकिन इसकी हदीस मैंने नहीं सुनी। सही बात। तो वो कि सवाब आपका इंक्रीज बिल्कुल सवाब आप किसी को देंगे, वही बल्कि अगला पॉइंट भी यही है कि मुर्दे के लिए दुआ करने से, कुछ खैरात कर देने से, बख्शने से उसको सवाब पहुंचता है, उससे उसको फायदा होता है। जो भी अच्छा काम उसके लिए करें, कुरान पढ़ के बलते हैं, अज़कार करके, तस्बीहात करके, दुआएं करके, उसके नाम पे माल खर्च करके, जो भी भेज देंगे इंशाअल्लाह ताला उसको पहुंच जाएगा। वो चाहे कोई भी कर दे उसके कोई भी कर दे, अपनी औलाद करेगी तो। अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी निशानियां क़यामत की बताई, सब जरूरी होने वाली है, सब जरूर होने वाली है। इमाम मेहदी जाहिर होंगे और खूब इंसाफ से बादशाही करेगी, काला दज्जाल निकलेगा और सब दुनिया में बहुत फसाद मचाएगा, उसके मार डालने के वास्ते हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे, उसको मार डालेंगे। याजूज माजूज बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, वो ज़मीन में फैल पड़ेंगे, वो बड़ा उधम मचाएंगे, फिर अल्लाह तबारक व तआला के कहर से हलाक होंगे। एक अजीब तरह का जानवर ज़मीन से निकलेगा और आदमियों से बातें करेगा, मगरिब की तरफ से आफताब निकलेगा, सूरज निकलेगा, कुरान मजीद उठ जाएगा, थोड़े दिनों में सारे मुसलमान मर जाएंगे और तमाम दुनिया काफिरों से भर जाएगी, और इसके सिवा और बहुत सी बातें होंगी, इन सब पर अकीदा ईमान होना चाहिए। एक मैंने हदीस पढ़ी थी सलीमा, ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी कि जो मेड जो है वो अपनी मालिकन को जन्म मालिक देगी। का बच्चा कैरी करेगी, मालिक का जिंदगी तो अंतलिदल अमतु रब्बतहा, कि लौंडी अपनी मालिकन जनेगी, लौंडी अपनी मालिकन जनेगी। इसके 2-3 मफहूम है इसमें। एक तो ये कि एक तो ज़ाहिरी मफहूम उलमा ने लिया कि इसका मतलब ये है कि गोया आदमी का ताल्लुक जो है वो औरतों से होगा, तो वो जो बच्चे होंगे वो बादशाहों के गोया इस तरीके से, अब चूंकि बादशाह की आपके मालिक की बेटी है तो बच्ची गोया मालिकन है, प्रिंसेस है, और तो लौंडी थी गुलाम थी तो गुलाम की मालिकन हो गई, इस तरह से। लेकिन इससे ज़्यादा जो करीन कयास है वो ये कि नाफरमानी का इशारा है इसमें, कि औरत जो है वो है तो माँ, उसकी जो औलाद हुई है, बेटे आमतौर पे बदतमीजी कर जाते हैं, कभी कभी बात कर जाते हैं, बाहर निकलते हैं, बोलते बालते हैं, लेकिन माँ से बेटी का बदतमीजी करना और जबान दराजी करना, ये ऐसा है कि अब अम्मा ने कुछ कहा, हुक्म चला रही अम्मा पर, ये बदतमीजी कर रही, इस तरफ गोया इशारा है कि इतनी बुराई हो गई कि माँ उसकी गोया गुलाम ही बन गई, उसकी लौंडी ही बन गई, कि उस पर हुक्म चला रही, उससे बदतमीजी कर रही। तो एक तरफ ये, दूसरा एक राय इसके बारे में ये कि ये गोया उम्मत का तस्करा है इसके अंदर। अमा जो है वो ये मोहनस, तो एक बड़ी उम्मत ने एक छोटी उम्मत को जन्म दिया, तो एक उम्मत से बुलाने की सकाफा, एक पूरी सिविलाइजेशन थी, तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को ईस्टर्न सिविलाइजेशन यानी अरबों की पूरी, मुसलमानों की जो पूरी सिविलाइजेशन है, उसने गोया वेस्टर्न सिविलाइजेशन को एजुकेट किया। और हमने देखा ये बिल्कुल इनके जब डार्क एजेस से क्या होता है इनका, स्पेन से और कहाँ जाके इन्होंने फिर मुसलमानों से पढ़ा सीखा, और उसके बाद आज ये इतनी बड़ी पावर बन चुके हैं कि वो जिस हुकूमत ने इनको या जिस सिविलाइजेशन ने इनको उठाया था उसके ऊपर अभी मालिक बन गए। तो गोया इस सिविलाइजेशन ने अपने ऊपर अपनी मालिकन को मुसल्लत किया, तो बहुत सारे मफहूम इसके अंदर हो सकते हैं। क़यामत के बारे में कि जब सारी निशानियां पूरी हो जाएंगी तो क़यामत का दिन शुरू होगा, जब हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के हुक्म से सूर, अल्लाह ताला के हुक्म से सूर फूकेंगे। ये सूर एक बहुत बड़ी चीज सींग की शक्ल पर है,
इस सूर के फूंकने से तमाम ज़मीन और आसमान फट कर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, तमाम मखलूक़ात मर जाएंगी और जो मर चुके उनकी रूहें बेहोश हो जाएंगी, मगर अल्लाह ताला को जिनको बचाना मंजूर है वो अपने हाल पर रहेंगे, एक मुद्दत इसी कैफियत पर गुजर जाएंगे। फिर जब अल्लाह ताला को मंजूर होगा तमाम आलम फिर पैदा हो जाएगा, तो दूसरी बार फिर सूर फूंका जाएगा, इससे फिर सारा का सारा आलम दोबारा पैदा हो जाएगा, मुर्दे जिंदा हो जाएंगे, क़यामत के मैदान में सब इकट्ठे होंगे और वहाँ की तकलीफों से घबराकर अपने पैगंबरों के पास सिफारिश कराने जाएंगे। आखिर हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे, तराजू खड़ी की जाएगी, भले बुरे अमल तोले जाएंगे, उनका हिसाब होगा, बाज़ बेहिसाब जन्नत में जाएंगे, नेकों का नामा अमाल दाहिने हाथ में और बदों का बाएं हाथ में दिया जाएगा। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को हौज़ कौसर का पानी पिलाएंगे जो दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा होगा। पूरे सिरात पर चलना होगा, जो लोग नेक हैं वो उससे पार होकर बहिश्त में पहुंच जाएंगे, जन्नत में यानी, और जो बद हैं उससे उस पर से गिर गिर कर दोज़ख में गिरते जाएंगे, कट कट के गिरेंगे। दोज़ख पैदा हो चुकी, इसमें सांप और बिच्छू और तरह तरह का अजाब है। दोज़खियों में से जिनमें ज़र्रा बराबर भी ईमान होगा वो अपने अमाल की सजा भुगत कर पैगंबरों और बुजुर्गों की सिफारिश से निकलकर जन्नत में दाखिल होंगे, खा कितने ही बड़े गुनाहगार हों। और जो काफिर और मुशरिक हैं वो उसमें हमेशा रहेंगे, उनको मौत भी न आएगी। जन्नत भी पैदा हो चुकी है और उसमें तरह तरह के चैन और नेमतें हैं। जन्नतियों को किसी तरह का डर और गम न होगा और वो उसमें हमेशा रहेंगे, न उससे निकलेंगे और न वहाँ मरेंगे। अल्लाह तबारक व तआला को इख्तियार है कि छोटे गुनाह पर सजा दे या बड़े गुनाह को भी अपनी मेहरबानी से माफ़ फरमा दे, उस पर कोई सजा न दे। शिर्क और कुफ्र का गुनाह अल्लाह कभी किसी को माफ़ नहीं करता, अल्लाह ने खुद कुरान में फैसला किया, और उसके सिवा और जिस गुनाह को चाहेगा अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी से माफ़ फरमा देगा। जिन लोगों का नाम लेकर अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती होना बता दिया, उनके सिवा किसी और के जन्नती होने का यकीनी इल्म नहीं लगा सकते, यकीनी हुक्म नहीं लगा सकते। ये कहना कि फला शख्स जन्नती, ये जन्नती था, ऐसा किसी के बारे में नहीं। जिनके बारे में अल्लाह के रसूल ने बता दिया बस वहाँ तक तो ठीक है। बाद वालों के लिए हमारा गुमान गालिब है कि ये बुजुर्गान दीन, ये बड़े बड़े इमाम, ये बड़े बड़े लोग ये सब जन्नत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे दादा, मेरे नाना, पापा, आदमी सोचता है, जो बुजुर्ग समझता है, लेकिन क्या होंगे यकीनी बात है अल्लाह वाला, सिर्फ अल्लाह ही जानते किसका क्या मामला, तो अल्लाह पर कोई हुक्म नहीं लगाएंगे। अलबत्ता अच्छी अच्छी निशानियां देखकर अच्छा गुमान रखना और उसकी रहमत से उम्मीद रखना जरूरी है। जन्नत में सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का दीदार है, जो जन्नतियों को नसीब होगा उसकी लज्जत में तमाम नेमतें हेज मालूम होगी। दुनिया में जागते हुए अल्लाह तबारक व तआला को आंखों से किसी ने नहीं देखा और ना कोई देख सकता है। मतलब ये ख्वाब में अगर किसी ने देखा अल्लाह ताला का, महसूस किया अल्लाह को, तो वो पॉसिबल है। आंख से देखना पॉसिबल नहीं। उम्र भर कोई कैसा ही भला बुरा हो, मगर जिस हालत में खात्मा होता है उसी के मुवाफिक उसको अच्छा बुरा बदला मिलता है। आदमी उम्र भर जब कभी तौबा करे, जब मुसलमान हो, अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल है। अलबत्ता मरते वक्त जब दम टूटने लगे और अजाब के फरिश्ते अब दिखाई देने लगे, तो उस वक्त तौबा कबूल नहीं होती और उस वक्त ना ईमान कबूल है। फिरौन के बारे में आता है, जब डूबने लगा फरिश्ते मौत के देख लिए, तब कहता आमनतु बिरब्बी मूसा व हारून, अब मैं आता हूँ ईमान। तो कहा अल्आन, अब लाते, ऐसा नहीं सही। उसके बाद वो सवाल उन्होंने किए, तकदीर किसे कहते हैं, अल्लाह ने कितने पैगंबर भेजे, चंद मशहूर पैगंबरों के नाम लिखे, क्या सब पैगंबर दर्जे में बराबर हैं, मिराज किसे कहते हैं, फरिश्ते किसे कहते हैं, 4 मशहूर फरिश्तों के नाम लिखे, जिन किसे कहते हैं, क्या इब्लीस जिनों में से है, वली किसे कहते हैं, करामत की तारीफ करें, क्या कोई वली नबी के बराबर हो सकता है, क्या उस पर कभी शरीयत के अहकाम माफ हो सकते हैं, बिदअत किसे कहते हैं, 4 मशहूर आसमानी किताबों के नाम लिखे, एक पैगंबरों पर नाज़िल हुई साहबी की तारीफ करें, उनमें से जो 4 सबसे बढ़कर है उनके नाम लिखे, हुजूर की औलाद बीवियों में सबसे बड़ा रुतबा किसका है, क़यामत की निशानी उसके अहवाल लिखे, अल्लाह के मुताल्लिक़ 3 अक़ायद लिखे, मुअजिज़ा और करामत किसे कहते हैं, नेज़ इन दोनों के दरमियान फ़र्क़ भी वाज़ेह करें, पैगंबरों के मुताल्लिक़ अपना अक़ीदा लिखें, ईमान कब दुरुस्त होता है, मुनकर नकीर कौन है, उनके सवालात क्या होंगे, जन्नत और दोज़ख के हालात लिखें। यकीनन कंप्लीट हो गया, बेसिक बात, बुनियादी मामूली सी बात है, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह सब मुसलमानों को पता होती है।